Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Gerewal's textbook 2022 edition, chapter 7, Death of a Partner. And in this video we will study preparation of deceased partner's capital account, his executor's account and his executor's loan account till it is finally settled. So let us see some questions from the textbook. So question number 37 we will see Arun, Bhim and Nakul are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:3. Their capital accounts showed the following balances on 1st April 2018. Arun rupees 2 lakh, Bhim rupees 1,50,000 and Nakul rupees 4,50,000. Firm closes its accounts on every year on 31st March. Bhim died on 31st March 2019. In the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following. Interest on capital will be allowed to deceased partner only from the first of day of the accounting year till the date of his death at the rate of 10% per annum. The deceased partner's share of goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years' purchase of the average profits of the last 3 years. The profits of the firm for the last 3 years ended 31st March were 2017 rupees 90,000, 2018 rupees 2 lakh and 2019 rupees 1,60,000. His share of profit till the date of death. The profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was rupees 1,60,000 before providing for interest on capital. Bhim's executor was paid the sum due in 2 equal annual installment with interest at the rate of 10% per annum. Now further the question says, prepare Bhim's capital account as on 31st March 2019 to be presented to his executor and his executor's loan account for the year ending 31st March 2020 and 31st March 2021. So let us see the solution with full detail explanation. So solution 37 we will see. Find deceased partner भीम का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है और सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. अरुण, भीम और नकुल का जो कैपिटल है उसमें हमें भीम का कैपिटल लेना है क्योंकि हमें सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है यहाँ. ओके. फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% क्योंकि भीम की मृत्यु 31 मार्च 2019 को हुई है, मतलब साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. सो हम इसको 10% इंटरेस्ट दे देंगे. 15,000 रुपीज़ आएगा. 1,50,000 का 10%. देन हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. सो गुडविल के लिए लेट अस कैलकुलेट गुडविल फर्स्ट फॉर द फर्म. गुडविल इज इक्वल टू 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज हमें निकालना है. सो 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 ये हो गया और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 इयर्स परचेज बोल रहा है. सो ये आंसर आ गया हमारा 3 लाख. ये फर्म का गुडविल है. लेकिन भीम का क्या आएगा? भीम्स गुडविल जो है वो 3 लाख का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भीम का 1/5 है. So it is coming to be 60,000 rupees which will be borne by the continuing partners, that is Arun and Nakul. Arun and Nakul. अरुण और नकुल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? ये गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे और इनका गेनिंग रेशियो है 1:3. क्यों? क्योंकि इनका रेशियो ही था 1:1:3. इसमें भीम जो था वो बीच वाला था
तो भीम के चले जाने के बाद जो रेशियो बच रहा है 1:3, यही इनका न्यू रेशियो है और यही इनका गेनिंग रेशियो भी है. सो 15,000 अरुण विल गिव and 45,000 Nakul will give. So by Arun. $15,000, 60,000 में से 50,000 रुपए अरुण देगा और बाकी नकुल, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो 1:3 है. ओके, फिर सस्पेंस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में कह रहा है कि 31 मार्च को इंटरेस्ट और कैपिटल देने के पहले 1,60,000 था. सो 1,60,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 रुपीज़ लेस कर देंगे और 1/5 दे देंगे, क्योंकि साल भर का देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक ही पार्टनर को अलाउड है ना. जो कुछ भी कंडीशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो किसी पार्टनर के मृत्यु हो जाने पर है, सिर्फ उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है. बाकी के दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा है फर्म. आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए. फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. सो यहाँ इनका रेशियो, इनका पोर्शन आ जाएगा प्रॉफिट में से 29,000. बस इतना ही हमें देना है. सो ग्रैंड टोटल आ गया हमारा 2,54,000 और ये पूरा का पूरा अमाउंट भीम के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा. भीम्स एग्जीक्यूटर. बैलेंसिंग फिगर. सो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट और यहाँ से कुछ भी अमाउंट हमें पेमेंट नहीं करना होता है क्योंकि भीम इज़ नो मोर अलाइव. इसलिए जो कुछ भी पेमेंट होता है वो एग्जीक्यूटर को होता है. तो ये अमाउंट हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जो भी पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट होगा. नाउ भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट. सो भीम के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर आएगा अमाउंट यहाँ 1,419 को. फाइन, यहाँ लिखेंगे बाय भीम्स कैपिटल. भीम्स कैपिटल अकाउंट 2,54,000 और पेमेंट होगा ईयरली इंस्टॉलमेंट में. 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखा हुआ है. सो 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 को हम इंटरेस्ट देंगे. इंटरेस्ट इसी अमाउंट पे दिया जाएगा एंड रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. सो इसका 10% आएगा 25,400. फाइन. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हैं 20 को टू बैंक. सो यहाँ पर आएगा 2,54,000 का हाफ, मतलब 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट पूरा का पूरा 25,400. ये दोनों को ऐड करेंगे आएगा 152,400. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना. अब 31/3/20 को क्लोज कर देंगे. टू बैलेंस क्लोज डाउन. सो माइनस करेंगे, यहीं पर इसे क्लोज कर देते हैं. $2,79,400. 2,79,400. So here we get 127,000. ओके, इतना पैसा बचा हुआ है. अब ये नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा, मतलब 1/4/20 को हम ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,000 और इस साल के आखिरी दिन में हम इसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ड्यू करेंगे. इसी 1,27,000 का 10%, मतलब 12,700. बस इतना ही हमें करना है. फाइन. सो ऑन 31 मार्च 21 टू बैंक. अब बैंक से पेमेंट होगा 1,27,000 तो देना ही है, प्लस ये ब्याज का भी 12,700 रुपीज़ देंगे. 139,700.
सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा और सुना है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel, and if you have not yet then please do like, subscribe and share it. Thank you so much for watching.